ठीक है, so let's just begin the SQL. SQL is basic tool and it is the most common tool, or I would say a language that is used in the world of data analysis. Without SQL, you won't be able to survive in the data analysis field or in the business intelligence field. ठीक है, so why study SQL? SQL is a structured programming language or a structured query language. The full form of SQL is Structured Query Language. It is a programming language designed for working with databases. It allows us to create, manipulate, and share the data from the databases. The overall usage of SQL is to retrieve the data from the database, then manipulate the data, then share the data with the Power BI or with the Tableau so that we can create reports out of it, and then finally to analyze it. Okay. Ab SQL is just a language. Okay, I'm repeating, just like English. Similarly, SQL is a language. Now, to use English, we have to go to the English speaking. Voice is not on. Hello, Manav, you are not Hello. audible actually. Yes, अब yes, फ्लाइट चली गई, नेटवर्क प्रॉब्लम था. नाउ आई एम बैक. कैन यू हियर मी नाउ? yes. Yes, yes. ऑल राइट, लेट मी सी. रिकॉर्डिंग भी हो रही है. ऑल राइट, कूल. परफेक्ट. सो फार एसक्यूएल क्लियर. एसक्यूएल इज जस्ट अ लैंग्वेज जस्ट लाइक इंग्लिश. अब हम इंग्लिश को यूज करने के लिए वी हैव टू गो टू द इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज. करेक्ट, हम वहीं पे इंग्लिश में बात कर सकते हैं. चाइना में जाके इंग्लिश में बात करेंगे, उनको कुछ समझ नहीं आएगी. उसी तरह से एसक्यूएल को यूज करने के लिए वी हैव टू गो टू द प्लेटफॉर्म्स और द डेटाबेसेस व्हिच अंडरस्टैंड्स द एसक्यूएल. अब हर कंट्री की प्रोनाउंसिएशन अलग होती है. फॉर एग्जांपल, इंडिया में हम शेड्यूल बोलते हैं, यूएस में जाओगे उसको आप शेड्यूल बोलोगे. सिमिलरली एसक्यूएल के भी सिंटेक्स बहुत माइनर से चेंजेस होते हैं. कहीं में कॉमा लगता है, कहीं में ब्रैकेट लगता है, बट ओवरऑल आपका फंडामेंटल सेम रहेगा. कूल. नाउ एक इसका आर्किटेक्ट समझते हैं, हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं. सो देयर इज अ डेटाबेस. इन अ डेटाबेस वी राइट अ क्वेरी, वी कॉल इट अ पीस ऑफ कोड, देन वी पास इट टू अ कंप्यूटर. उस कंप्यूटर से अपने को एक रिजल्ट मिलता है, उसको हम बोलते हैं आउटपुट. दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज क्वेरिंग द डेटाबेस. सो फार सो गुड. Yes. All right. Now SQL is very intuitive. It is very easy to learn and it helps to solve the business problems which involves the large amount of data. अगर आपके पास data उतना बड़ा नहीं है, then there is no point of putting the data into the SQL. We can work it in Excel also, correct? But if we have a large amount of data where Excel cannot support us, then SQL comes into the picture. Or generally, आजकल everything is data and every company is owning the data. So we need the SQL. We need the databases to store our data. Now, where to practice SQL? I have told you SQL is a language. उसको हम कहाँ practice करेंगे? To practice it, we need a database management system or DMS. Now, there are many popular databases. For example, SQL Server, Oracle Server, MariaDB, SQLite. और भी बहुत सारे हैं, PostgreSQL, etc. But where we are going to learn? We are going to learn with MySQL. Now, why MySQL? MySQL is a reliable source. It's a mature source. That means ये market में बहुत देर से है. And big companies are using it. And third, it is a open source. It is absolutely free to use MySQL. Okay? ये SQL सर्वर भी मतलब उसमें वो भी आई गेस काफी यूज होता है ना. हाँ, SQL सर्वर भी बहुत यूज होता है, but it's a paid version. Okay. It's not free. MySQL is free. बहुत सारी कंपनीज में Oracle यूज होता है SQL की जगह, but उसका सिंटेक्स सेम है. सिंटेक्स SQL ही रहेगा उसमें. Okay. Okay? थोड़ा बहुत चेंजेस आई गेस उसके बहुत अंदर, माइनर मतलब चेंजेस है, बहुत we माइनर. cannot use limit, instead of that we have to use top, करेक्ट. like वेरी माइनर चेंजेस. ठीक है, उसके बारे में आई विल टेल यू. देखो, अगर आपके लॉजिक्स क्लियर हैं, यू नो व्हाट नीड्स टू डू, आपको पता है माई एसक्यूएल में व्हाट लिमिट विल डू, गो टू द गूगल एंड सर्च व्हाट इज द अल्टरनेटिव ऑफ लिमिट इन ओरेकल. दे विल टेल यू टॉप और बॉटम. Okay. ठीक है. अ डेटाबेस, व्हाट इज अ डेटाबेस? सो फार आई हैव बीन टॉकिंग अ लॉट अबाउट डेटाबेस, बट कैन यू टेल मी व्हाट इज अ डेटाबेस? अकॉर्डिंग टू यू डेटाबेस क्या है? इफ Where we एनीवन कैन have आंसर मी. गलत भी होगा चलेगा, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड अभी तक डेटाबेस क्या है? I think collection of data. ओके. सर एक ऐसा प्लेस है जहाँ डेटा स्टोर हो सकता है. Right. Guys, can you give me a second, please?
Yep. Okay. So just to make it simple, database is a place where we can store multiple tables, right? A database most often contains one or more tables. Each table is identified by a name, example, customers tables or orders table. Tables contain records or rows with the data. Best example to understand database is a Microsoft Excel workbook. Let me open that up for you. So let's suppose this Excel workbook is a database. What is the name of the database? Amazon sales database. Okay. एक Okay. डेटाबेस के अंदर either one table or multiple tables हो सकते हैं. Similarly, in Excel workbook we can have either one sheet or multiple sheets. Do you agree? Yes. And every sheet is going to have records, right? Or every Yes. table is going to have a record. So this is a database. So far so good? Yes. Perfect. Now we can retrieve the data from other tables only if they have a relation between them, which is known as RDBMS, only for normalized data. Normalized data क्या होता है? इस टाइप का डेटा जो आप देख रहे हो इसको हम नॉर्मलाइज डेटा बोलते हैं. मतलब वी हैव अ स्ट्रक्चर, देयर इज अ कॉलम और उसके नीचे सिर्फ उसी की इंफॉर्मेशन है. फॉर एग्जांपल डेट ऑफ परचेज, सो वी ओनली हैव डेट फॉर दिस. करेक्ट? दिस इज अ नॉर्मलाइज डेटा. देन वी हैव कस्टमर आईडी, सिर्फ कस्टमर आईडीज हैं. आइटम कोड एंड देन कंपनी नेम. दिस इज अ नॉर्मलाइज डेटा. अननॉर्मलाइज डेटा क्या होता है कि आप कुछ भी डाल रहे हो. लेट्स सपोज आपने यहाँ पे डेट डाल दी 1 सितंबर 2024. यहाँ पे आपने आइटम नंबर डाल दिया, यहाँ पे आपने कैटेगरी नंबर डाल दिया और यहाँ पे आपने कस्टमर डाल दिया. सो दिस इज डीनॉर्मलाइज डेटा. करेक्ट? इसका कोई सेंस नहीं है. Yes. ये डेटा रिट्रीव करना क्या होता है किसी? डेटा रिट्रीव करना मतलब आपके डेटाबेस में जो डेटा है आपको वो निकालना पड़ेगा उसको यूज करने के लिए. Yes. तो उसको हम बोलते हैं डेटा रिट्रीवल प्रोसेस. Okay. ठीक है? हम उसमें ऐड भी करते हैं, उसमें से निकालते भी हैं. ठीक है. हेलो. हाँ, हाय कनव. कनव, जैसे आपने बताया ना कि MySQL इज अ फ्री ओपन सोर्स. करेक्ट. तो जो कंपनीज हैं जो यूज करती हैं बड़ी-बड़ी कंपनीज, तो इनको तो पेड वर्जन लेना पड़ता होगा इसका, या फिर ये भी ओपन मतलब नहीं, ऐसे ही कंपनीज यूज कैन गो विद द ओपन सोर्स आल्सो. बेसिकली आपको आपके सर्वर को सिक्योर करना है. ओके. तो बहुत सर्वर सारी को सिक्योर कंपनीज करने के लिए MySQL यूज करती हैं. सर्वर को सिक्योर करना तो आपके ऊपर है कि आप उसको किस सर्वर पे डाल रहे हो. फॉर एग्जांपल अभी मैंने जब आपने इंस्टॉल किया, आपने अपने लोकल मशीन में उसको डाल दिया. करेक्ट? हाँ, ओके. आप इसको लोकल मशीन में नहीं डाल के आप इसको कहाँ डालोगे? Amazon वेब सर्विसेज में डालोगे या Microsoft Azure में डालोगे, जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग है. तो उसके अंदर आपका ओके. सारा का सारा डेटा सिक्योर होगा. तो उसके अंदर जाने के लिए यू हैव टू नीड द क्रेडेंशियल्स. ये तो आपका लोकल सिस्टम है तो आपको क्रेडेंशियल्स की जरूरत नहीं है. ठीक है. ठीक है? तो उसको सिक्योर करने के लिए वो नेटवर्किंग का काम है. हम नेटवर्किंग में नहीं जा रहे. हम SQL आर्किटेक्चर में नहीं जा रहे. हम SQL लैंग्वेज सीख रहे हैं टू रिट्रीव द डेटा, टू मैनिपुलेट द डेटा. तो फिर ये फ़र्क क्या हुआ, मतलब जैसे MS SQL हमने यूज़ करा या फिर मैं SQL सर्वर यूज़ कर रहा हूँ, तो SQL करेक्ट? सर्वर में फिर SQL सर्वर में फिर मैं डेटा मतलब अच्छा उनके सर्वर की जगह मैं AWS का सर्वर यूज़ करूँ या Azure का सर्वर यूज़ करूँ? करेक्ट. SQL सर्वर तो नाम है उस प्लेटफॉर्म का. उस प्लेटफॉर्म हाँ नाम ही है मतलब वो मैं बस यही करेक्ट. समझ आया. सिमिलरली ठीक है. Oracle का भी एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वो उसका नाम है Oracle. अब उस सर्वर को आप कहाँ स्टोर करोगे? जब आपने इंस्टॉल किया था, मैंने दो चीजें इंस्टॉल करवाई थी आपसे MySQL में. हाँ, एक वर्कबेंच जिसमें हम क्वेरी लिखते हैं और दूसरा उसका सर्वर. आपने सर्वर किसको बनाया? अपने लोकल मशीन को. तो जो भी आप डेटा या टेबल डेटाबेस उसमें स्टोर करोगे वो आपकी लोकल मशीन की मेमोरी लेगा. ओके. क्लाउड कंप्यूटिंग होता कुछ नहीं है. क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको वर्चुअल कंप्यूटर्स मिलते हैं विद हार्ड ड्राइव. हाँ, ठीक है. ओके. मैं अपने इस मशीन को भी क्लाउड में कन्वर्ट कर सकता हूँ. इफ आई गिव यू द एक्सेस ऑफ दिस मशीन, लेट्स सपोज ये अगर 1 TB स्पेस है, मैंने आपको 10 GB की स्पेस दे दी कि आप 10 GB इसमें कुछ भी डाल सकते हो. और ओके. इसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी लगा दिया आपके लिए अलग से, एक 10 GB का. ओके. तो आपके लिए वो एक कंप्यूटर बन गया, वर्चुअल कंप्यूटर. हाँ, अब आप अपना ओके. सर्वर उसमें डाल दो. लेकिन उस कंप्यूटर को लॉगिन करने के लिए आपको यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए होगा, जैसे आपको अपने लैपटॉप को ऑन करने के लिए भी चाहिए होता. हाँ, ठीक है. तो वो सिक्योर्ड होना चाहिए. सर्वर तो आप ही के पास है, डेटा तो आप ही के पास रहेगा, SQL के पास नहीं जाएगा. ओके. ओके. ठीक है? ओके. All right. Now, we can retrieve the data from other tables only if they have relation between them, which is known as RDBMS. RDBMS की फुल फॉर्म होती है Relational Database Management System. अब एक बात बताओ, मेरे पास एक ये सेल्स का टेबल है यहाँ पे, जिसमें परचेज नंबर, डेट ऑफ परचेज, कस्टमर आईडी, आइटम कोड और कंपनी नेम है. करेक्ट? सिमिलरली मेरे पास एक प्रोडक्ट टेबल भी है यहाँ पे. प्रोडक्ट टेबल पे मेरे पास आइटम कोड है और उसके बाद हर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है.
सो अगर मेरे को ये देखना है कि ये A_1 कौन सा प्रोडक्ट है, सो व्हाट आई हैव टू डू, I have to go to the product table, search for the A1 and then I have to see the product name, उसका MRP कितना है या उसकी कंपनी कौन सी है जिससे हमने ये खरीदा हुआ है. Make sense? ये इंफॉर्मेशन आपकी कब निकलेगी? Yes. जब सेल्स और प्रोडक्ट टेबल आपस में रिलेटेड है. So अगर we have two or more tables, if they are not related to each other, then we cannot fetch this information. So this is what this is meant by we can retrieve the data from other tables only if they have a relation between them. वो relation कैसे बनाते हैं? We'll learn that. But मोटा-मोटा concept समझ गए? Yes. Perfect. Now let's just work with the SQL theory. Now see, there are four major languages in SQL that you have to understand. One is data definition language, which is DDL. ठीक है? DDL याद रखोगे? Will you remember this DDL? Yes. Yes, sir. Data definition language. Language. ठीक है? Okay. Now, एक कीवर्ड याद रखना, SQL syntax. Every language has a syntax. For example, English का grammar है, correct? We have to understand the grammar correct. For example, did के साथ हमेशा first form of verb लगती है. Similarly, SQL is also a syntax. What is syntax? It comprises of several types of statements that allows you to perform various commands and operations. अब आपको अगर कोई चीज कोड करना है तो डेफिनेटली उसकी कोई सिंटेक्स होगा या उसका कोई फॉर्मेट होगा लिखने का, करेक्ट? Yes. तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में there are set of statements that allow the users to define or modify data structures and objects such as tables. इसको याद रखना, DDL के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ objects और उसका structure बनाते हैं. We are not creating a data into it. So data Object क्या हो गया definition के हमारा? अंदर object हो गया, let's suppose table, sales, Okay. Okay. database, ये जो हमने workbook बनाया Amazon sales हाँ, हाँ. database, ठीक है, ये हमारे objects हैं. Okay. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज मेरे को एक टेबल बनाना है अपने नॉलेज कैसल के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है? तो टेबल क्या है? आप टेबल का नाम क्या दोगे सबसे पहले? चलो, मेरे को एक एक्सेल फाइल मेंटेन करनी है लेट्स सपोज फॉर माय स्टूडेंट्स ऑफ नॉलेज कैसल. स्टूडेंट बैच नंबर. टेबल का नाम डाल दूं स्टूडेंट डिटेल्स. हाँ स्टूडेंट. तो मेरा टेबल नेम क्या हो गया? स्टूडेंट डिटेल्स. ये क्या है मेरा? ऑब्जेक्ट. अब अगर मैंने सिर्फ एक खाली शीट छोड़ दी तो इसका कोई फायदा है इस टेबल का? No. तो टेबल में मेरे को कम से कम एक कॉलम तो चाहिए. क्या लगता है कौन सा कॉलम सबसे पहले डालना चाहिए? अगर मेरे को एक रिकॉर्ड बनाने हैं अपने स्टूडेंट्स के तो क्या लिखना चाहिए? क्या क्या इन्फॉर्मेशन मेरे पास होनी चाहिए? Name. फर्स्ट नेम, First name. Last name. लास्ट नेम, और क्या होना चाहिए? Contact number. Contact ओके, number. कॉन्टैक्ट नंबर, कौन से बैच में उसने ज्वाइन करा है, बैच आईडी और बैच डेट, एनीथिंग, करेक्ट? Right. ओके, उसके बाद उसका स्टेटस क्या है, कंप्लीटेड और नॉट कंप्लीटेड. फिर उसके बाद उसकी जॉब स्टेटस क्या है, जो भी whatever information I want to write, I can create a list of it. So what I'm doing as of now, I'm just creating the structure of my table. I'm not adding any data. ठीक है? इस स्ट्रक्चर को हम सिर्फ DDL लैंग्वेज से ही बुक कर सकते हैं. Remember this, DDL language will only use to create, define or modify the structures and objects such as tables, databases. और भी objects होते हैं, we will learn them once we move there. But starting में table और database, समझ गए? Right. अगर लाइक कर मुझे टेबल का नेम चेंज करना है या किसी कॉलम का नेम चेंज करना है. हाँ, वो DDL का ही पार्ट है. DDL का part है. That is a part of DDL because we are modifying the structure. Column name भी change करना है, that is a DDL. Okay. ठीक है? हाँ, ठीक. So DDL के लिए now सबसे पहले let's just try to understand few commands. ठीक है? हर एक लैंग्वेज की एक कमांड है. The create statement. What do you think create statement will do? It will create मतलब statement बनाएगा. Table. It will create the object such as tables or database. हाँ हाँ. Correct? Okay. Okay. It is used for creating the entire database and database objects such as tables. Fair enough? Yes. इसका सिंटेक्स क्या है? क्रिएट स्टेटमेंट का. इसका सिंटेक्स बहुत Create सिंपल है, table. याद रखना. DDL का सिंटेक्स होता है कमांड, द नेम ऑफ द कमांड, उसके बाद Create. ऑब्जेक्ट टाइप एंड देन ऑब्जेक्ट नेम. ये तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं एक DDL कमांड के और एक DDL सिंटेक्स के. ठीक है? तो सबसे पहली कमांड हमने कौन सी पढ़ी? क्रिएट.
क्रिएट ठीक है, क्रिएट क्या बनाना है, कौन सा ऑब्जेक्ट बनाना है, डेटाबेस बनाना है या टेबल बनाना है। लेट्स सपोज हमको ये Amazon सेल्स डेटाबेस बनाना है, ठीक है। तो आई विल राइट डेटाबेस, उस डेटाबेस का नाम क्या रखना है, Amazon sales. Amazon_sales_database, सेमीकोलन, हिट एंटर। जैसे आप एंटर करोगे आपका एक डेटाबेस बन जाएगा विद द नेम ऑफ Amazon सेल्स डेटाबेस। अभी उस डेटाबेस के अंदर कुछ नहीं है, कोई टेबल नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, अभी हमने सिर्फ डेटाबेस बनाया है, करेक्ट। राइट नेक्स्ट, उस डेटाबेस में हम क्या बना सकते हैं, Column. टेबल, टेबल के अंदर Yes. हम कॉलम बनाते हैं, Okay. राइट। अभी मैंने आपको एक चीज बताया था, लेट्स सपोज आई हैव टू क्रिएट अ स्टूडेंट टेबल, माय स्टूडेंट डिटेल्स टेबल, करेक्ट। यस मैंने एक नई शीट बनाई, यहाँ पे लिखा student_detail। इफ आई वांट टू क्रिएट दिस आई हैव टू हैव एटलीस्ट वन कॉलम। अगर मेरे पास कोई कॉलम इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो टेबल बनाने का कोई सेंस नहीं है, टेबल बनेगा ही नहीं, क्योंकि विदाउट अ कॉलम टेबल का कोई काम है, ये एम्प्टी शीट का कोई काम है, अभी शीट 3 का नहीं नहीं है ना, इसको डिलीट कर दो। पर अगर मेरे पास कॉलम नहीं है तो मेरा काम चलेगा नहीं। नाउ टू क्रिएट अ टेबल, अगेन आई विल राइट क्रिएट, माय नेक्स्ट इज टेबल। लेट्स सपोज मेरे को सेल्स का टेबल बनाना है, तो नाम क्या आएगा, ऑब्जेक्ट नेम क्या है, सेल्स। अब इसके अंदर व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू गिव एटलीस्ट वन कॉलम, करेक्ट। यस इन ब्रैकेट्स आई विल टाइप द कॉलम नेम। लेट्स सपोज मेरे को परचेज नंबर देना है, सो व्हाट आई विल राइट, परचेज अंडरस्कोर नंबर। नंबर अब मेरे को इसका डेटा टाइप भी देना है, परचेज नंबर का डेटा टाइप क्या है, क्या लगता है आपको, इंटीजर इंटीजर और न्यूमेरिकल, करेक्ट। राइट We'll type integer. Simple. What this will do, this will create a table of a sales with a column purchase number. बस और कुछ नहीं करेगा ये। So create table, object name, column name and data type. Fair enough? यस अगर मेरे को लेट्स सपोज ये सारे के सारे कॉलम्स बनाने हैं तो मैं क्या करूंगा, Create. so I'm deleting this और लेट्स सपोज नाउ मैंने ये दोबारा लिखा और परचेज नंबर इंटीजर कॉमा व्हाट इज द Comma. सेकंड कॉलम, डेट डेट अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर परचेज। इसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, डेट डेट इसका डेट कॉमा कस्टमर अंडरस्कोर आईडी कॉमा अगेन इंटीजर कॉमा आइटम अंडरस्कोर कोड का हम लोग डाल देते हैं स्ट्रिंग। डेट ऑफ परचेज इंटीजर कैसा हुआ डेट ऑफ परचेज डेट हुआ ना, ये देखो Okay. डेट ऑफ परचेज का है डेट, कस्टमर आईडी का है इंटीजर, आइटम कोड का मैंने डाला स्ट्रिंग और कॉमा कंपनी नेम का भी मैंने डाल दिया स्ट्रिंग स्ट्रिंग। ओके Now as soon as I run this command, SQL will create a table with the name of sales which have all these columns. Fair enough? यस Create table sales purchase number integer. What this will do, it will create a sales table with the column of purchase number. ओके Simple? We put column name in bracket always. Yes, you'll put your column names in bracket. If you have multiple columns, it will be separated by a comma. And if there is 100 of columns, then This is how you will write. Comma, 100 of comma. columns. Yes, because see, SQL is a coding language. You are coding everything. You are writing it. जैसे कि एक चीज पूछनी थी, जैसे कि हम लोगों को तो डेटा मिलेगा ना, तो हम लोगों को तो क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है. But this is important to learn. ओके ठीक है, क्योंकि जब आप डेटा को मैनिपुलेट भी करोगे ना, आपको टेबल का स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए, टेबल का स्ट्रक्चर क्या है. SQL में I'll tell you, you have to read the DDL of that particular table to understand कि कौन सा कॉलम किस टाइप का कॉलम है, क्या वो क्वालिटेटिव फील्ड है या क्वांटिटेटिव फील्ड है, वो आपको यहीं से पता चलेगा DDL से. और वो DDL कैसे देखते हैं टेबल का, दैट वी विल लर्न. ठीक है. ठीक है नेक्स्ट Sir? इज ऑल्टर स्टेटमेंट. ये सर अगर कॉलम नेम के साथ हम ये डिफाइन कर रहे हैं डेटा टाइप, तो उसके बाद में ये एक टाइप से वैलिडेशन हो गया क्या, इसमें दूसरा डेटा टाइप नहीं आ सकता क्या? नहीं आ सकता. एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है. इसमें अगर मैं डेट के अलावा कुछ और डालूंगा तो वो गलत हो जाएगा, वो एरर दे देगा अपने आप. ओके ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज ऑल्टर स्टेटमेंट. नाउ आपको क्या लगता है ऑल्टर क्या करेगा? चेंज करेगा चेंज, मॉडिफाई करेगा. करेक्ट. Modify. एसक्यूएल बहुत इंट्यूटिव है, राइट. राइट ओके, यूज व्हेन ऑल्टरिंग द एक्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स. मतलब जब एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है, अगर मैं ऑल्टर कर रहा हूं एक टेबल को जो अभी मैंने क्रिएट ही नहीं करा, तो एसक्यूएल आपको एरर दे देगा, द टेबल नॉट फाउंड और द ऑब्जेक्ट डजंट एग्जिस्ट. करेक्ट.
राइट सो हम ऑल्टर में क्या कर सकते हैं, इधर वी कैन ऐड, इधर वी कैन रिमूव और वी कैन रीनेम। रीनेम फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज मेरे को अब इसमें एक नया कॉलम क्रिएट करना है जो कि है कंपनी अंडरस्कोर एड्रेस। ये कैसे होगा? ऑल्टर Remember this कमांड command, object type and object name. So my alter is, command is alter. What is my object type? कंपनी Table. टेबल अच्छा मेरा ऑब्जेक्ट टेबल है ना सेल्स का। ओके ओके यस यस हाँ हाँ, और टेबल का नेम क्या है? कंपनी नेम सेल्स। ओह सॉरी सेल्स टेबल का नेम है सेल्स। उसके बाद what do I have to do? Add a column. कौन सा कॉलम मुझे ऐड करना है? अब मैं डालूंगा कंपनी अंडरस्कोर एड्रेस, कंपनी अंडरस्कोर एड्रेस, और इसको भी मैं स्ट्रिंग डाल दूंगा। मैं as soon as I will run this command, company underscore address column will be created in the sales table. Make sure. यस So add column date of purchase date. If I use this statement, alter table sales, add column date of purchase date, what will happen? add it will add that It will column create a new column date of purchase in the sales table, correct? right Okay, now if I, instead of add, if I use remove column, and then when you are removing, you don't have to identify the data type. You just give the table, column name. Remove column, company address. What it will do, it will remove this column. And it will also remove all the data also within that particular column. It is just like deleting that entire column. Okay? Okay. Now drop Can it- statement. can Yep. it remove a table also Yes. Yes. उसके लिए Computer. there is a drop statement. okay See, removing columns will not remove a table, correct? okay Because see, we are Oh. altering the table, right right? We are changing the structure. Either we are adding a column, we are renaming a column, or we are removing a column. हम एक टेबल में यही कर सकते हैं, Mhm. या मॉडिफाई कर सकते हैं एग्जिस्टिंग कॉलम्स को, उनका डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं, करेक्ट? right लेकिन अगर मेरे को रिमूव ही करना है, मतलब पूरा का पूरा टेबल ही उड़ाना है, तो मैं क्या करूंगा? ड्रॉप। इसका कमांड क्या होगा? इसका सिंटेक्स क्या होगा? ड्रॉप। लेट्स सपोज मेरे को स्टूडेंट डिटेल को हटाना है, तो मैं क्या करूंगा? ड्रॉप टेबल। टेबल का नाम क्या है? student अंडरस्कोर डिटेल। detail okay As soon as I run this command, it will delete this entire table. उसमें जो भी डेटा है, जो भी कॉलम्स है, सब उड़ जाएंगे। ड्रॉप ऑब्जेक्ट टाइप, ऑब्जेक्ट नेम। मेरे को अगर इस कस्टमर्स टेबल को हटाना है, व्हाट विल बी द सिंटेक्स? drop customer ड्रॉप टेबल एंड Drop कस्टमर। table. सेम। table customer. customer ऑब्जेक्ट टाइप इज टेबल। मेरे को क्या ड्रॉप करना है? टेबल। okay right. ऑब्जेक्ट नेम, उसका नाम। ठीक है? ठीक है इसको इस तरीके से समझो, एसक्यूएल एक बहुत बेवकूफ इंसान है। आपको उसको एक एक चीज बतानी पड़ेगी कि भाई okay, टेबल को हटा दे, उस टेबल का नाम कस्टमर्स है, ठीक है? ठीक है या एक काम कर, इस टेबल को ऑल्टर कर दे और उसमें नया कॉलम ऐड कर दे, उसका नाम ये है और उसका डेटा टाइप ये होना चाहिए, वो कर देगा। अगर आपने लिख दिया ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, वो डेटाबेस उड़ा देगा। जब डेटाबेस उड़ा तो उसके अंदर जो भी टेबल है, जो भी जितने भी टेबल हैं, जितने भी रिकॉर्ड है, सब उड़ जाएंगे, ठीक है? okay So that is why object type is very important. So far with me? yes All right. Next is rename statement. It allows you to rename an object. अगर मेरे को customers का नाम change करना है. Now reading this line, can you tell me a new SQL syntax? मेरे को let's suppose customer under सिर्फ customer रखना है, इसका नाम customers नहीं रखना. क्या syntax होगा? rename Correct. table Correct. Table. customers to Yes, new customer. name जो रखना है To customer. customer कर दूंगा Customer underscore data. right ठीक है? Customer underscore data. Similarly, rename database, जो भी नया नाम है, to new database name. Simple, easy, कोई difficult तो नहीं है? नहीं बस आपको ये स्ट्रक्चर समझना है इसका, कि DDL लैंग्वेज की जो भी कमांड है उसमें ऑब्जेक्ट टाइप और ऑब्जेक्ट नेम बहुत जरूरी है। बिना उसके आप कुछ नहीं कर पाओगे। SQL कंफ्यूज हो जाएगा करना क्या है। okay Now next is truncate. What truncate will do? Instead of deleting an entire table through drop, we can also remove its data and continue to have table as an object in the database. For example, मेरे को सिर्फ और सिर्फ ये डेटा डिलीट करना है। I don't want to delete this entire sheet. उसके लिए we have a command of truncate. truncate okay तो अगर मेरे को सेल्स का पूरा डेटा डिलीट करना है तो क्या लिखूंगा मैं? truncate truncate table 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 and sales.
सेल्स। दैट्स इट। ये जैसे ही लिखूंगा इट विल डिलीट एवरीथिंग। ठीक है, अच्छा, जो ट्रंकेट है वो हमारा डेटा डिलीट करेगा और रिमूव हमारा कॉलम हटाता है, करेक्ट। और ड्रॉप हमारा टेबल या डेटाबेस ही हटा देगा। डेटाबेस ही हटा देगा। ठीक है, हाँ ठीक है। सो डीडीएल लैंग्वेज के अपने पास क्रिएट है, ऑल्टर है, ड्रॉप है, रीनेम है और ट्रंकेट है। ठीक है। ऑल क्लियर? सर Yep. सर ये रीनेम कॉलम के लिए भी सेम टाइप से काम करता है क्या? नहीं, कॉलम नेम चेंज करने के लिए वी हैव अ स्टेटमेंट नोन एज मॉडिफाई। इंस्टेड ऑफ ऐड और रिमूव वी विल यूज मॉडिफाई। फॉर एग्जांपल मेरे को इसका कस्टमर आईडी को चेंज करना है। ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, ऑल्टर टेबल, एनीवे आई एम ऑल्टरिंग इट, टेबल का नेम है सेल्स, देन आई विल राइट मॉडिफाई। मुझे क्या मॉडिफाई करना है, कस्टमर अंडरस्कोर आईडी। अब इसके अंदर आपको क्या मॉडिफाई करना है, आप नया कॉलम का नाम डालो। लेट्स सपोज मेरे को कस्टमर अंडरस्कोर आइडेंटिफिकेशन डालना था और इसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, लेट्स सपोज इंटीजर। That's it. As soon as I run this command, it will change customer underscore ID to customer underscore identification और इसका डेटा टाइप हो जाएगा integer. Okay? We will use modify command in future, so don't worry. But ये major DDL के syntaxes है। एक थोड़ा कंफ्यूज, ये रीनेम और मॉडिफाई मतलब क्या करेगा? Rename आपका टेबल का नाम और ऑब्जेक्ट डेटाबेस का नाम चेंज कर रहा है। अच्छा, मॉडिफाई आपका टेबल का स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है। ठीक है। ठीक है, कई बार ये हो सकता है ना, आइटम कोड का नाम गलत है, आपको नाम चेंज करना है, या आइटम कोड का आपको डेटा टाइप ही चेंज करना है, ओके, ठीक है। तो उसके लिए आप मॉडिफाई करोगे। ओके, कूल। राइट। Now next is SQL keywords. What are SQL keywords? ये अभी तक हमने जितने भी कमांड्स सीखे हैं SQL के, चाहे वो ऐड हो, क्रिएट हो, ऑल्टर हो, एटसेट्रा, दीज आर द कीवर्ड्स। नाउ कीवर्ड्स इन SQL कैन नॉट बी द वेरिएबल नेम्स। व्हाट आर वेरिएबल नेम्स? जो भी हम ऑब्जेक्ट का नेम दे रहे हैं, या जो भी हम टेबल का नेम दे रहे हैं, या जो भी हम कॉलम का नेम दे रहे हैं। करेक्ट? टेम्परेरी स्टोरेज के लिए होता है वेरिएबल। नॉट टेम्परेरी स्टोरेज। बेसिकली जैसे ये टेबल का नेम है सेल्स, सो सेल्स जो भी मैं नाम दे रहा हूँ सेल्स यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल क्रिएट। अब आप खुद बताओ आप क्या करोगे, क्रिएट टेबल, टेबल। आपको क्या लगता है ये SQL बना देगा? नहीं। SQL आपको यहाँ पे एरर दे देगा, क्योंकि SQL बहुत बेवकूफ इंसान है। वो जब भी टेबल को समझेगा, उसको पता है कि ये टेबल का काम है ऑब्जेक्ट का टाइप, वो टेबल का नेम में ऑब्जेक्ट डालेगा ही नहीं, आपको एरर दे देगा। दिस नेम इज ऑलरेडी टेकन और यूज द वैलिड नेम फॉर द ऑब्जेक्ट टाइप टेबल। आप इसको TABLES कर दोगे तो चल जाएगा। So all these things, create, table, database, alter, drop, truncate, rename, ये सब क्या है, SQL के keywords हैं। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल क्रिएट टेबल ऑल्टर परचेज नंबर इंटीजर, आपको क्या लगता है बना देगा ऑल्टर का टेबल? नहीं। क्योंकि ऑल्टर एक कमांड है, इट विल गिव यू एन Command है। एरर। Yes. क्योंकि देखो SQL को लगता है जब ऑल्टर वर्ड आ गया, इसके आगे उसको टेबल का नेम चाहिए, पर हमने तो इसके आगे कुछ और ही डाल दिया, तो वो सिंटैक्स एरर बता देगा आपको। अब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कीवर्ड्स, बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, सारे कीवर्ड्स तो मुझे भी नहीं पता। जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करोगे ना और SQL का सिंटैक्स लिखोगे, जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सब अलग कलर में हाईलाइट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसमें ऑनलाइन ही दिखा देता हूँ, क्रिएट टेबल सिंटैक्स, ये देख रहे हो क्रिएट टेबल ब्लू कलर में है। Yes. हाँ। तो जो भी आप सिंटैक्स लिखोगे ना वो कलर ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। मतलब विच एवर आर कीवर्ड्स, जैसे सेलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, एज, उनका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है? Yes. तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जब आप लिख रहे हो आपको तभी समझ में आ जाएगा, अरे यार ये मैं वर्ड नहीं यूज कर सकता क्योंकि इट्स अ कीवर्ड। मेक सेंस? Yes. Yes, sir. ऑल राइट। नाउ कीवर्ड्स आर आल्सो नोन एज रिजर्व्ड वर्ड्स, समटाइम्स पीपल उसको रिजर्व्ड वर्ड्स भी बोलते हैं। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट व्हिच इज DML। DDL क्लियर है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सेकंड इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब मैनिपुलेशन क्या होता है? डेटा के साथ खेलना। आपका डेटा कहां स्टोर होता है? सिर्फ टेबल में, Database में। डेटाबेस में नहीं, डेटाबेस के अंदर के टेबल में स्टोर होता है। करेक्ट? Yes.
तो जो DML सिंटेक्स है वो हमेशा टेबल पे ही काम करेगा। इस केस में आपको ऑब्जेक्ट टाइप बताने की जरूरत नहीं है। इस केस में आपको क्या करना है, कमांड देना है और उसके बाद सीधा ऑब्जेक्ट का नेम देना है। क्योंकि DML इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, वो डेटा पे काम करेगा, डेटा आपका टेबल में स्टोर होता है, तो बाय डिफॉल्ट आपको टेबल लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, Right. ऑलराइट। द फर्स्ट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सेलेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या करेगा? वो It will retrieve the data from the database objects like tables. okay. It will just retrieve the data. Let's suppose मेरे को ये पूरा का पूरा डेटा चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा? Select star from what is the table name? Sales. ये कमांड मैं जैसे ही रन करूंगा मेरे को एक रिजल्ट विंडो पे ये रिजल्ट आ जाएगा। दिस इज नोन एज रिजल्ट विंडो MySQL पे। ठीक है, स्टार एक शॉर्टकट है टू रिट्रीव ऑल द डेटा। अगर मैं सिंपल लेट्स सपोज मुझे सिर्फ परचेज नंबर और डेट ऑफ परचेज चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा? सेलेक्ट, क्या सेलेक्ट करना है? परचेज Purchase अंडरस्कोर number, नंबर Purchase number from comma, or डेट sales. अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर परचेज। अच्छा, अगर मेरे को दो कॉलम सेलेक्ट करने हैं, okay. फ्रॉम Sales. सेल्स, आई कैन पुट कॉमा और सारे कॉलम नेम्स भी डाल सकता हूँ। आई कैन यूज सेलेक्ट स्टार ऑल्सो, और आई कैन यूज सेलेक्ट कॉलम नेम कॉमा कॉलम नेम कॉमा कॉलम नेम कॉमा कॉलम नेम फ्रॉम द टेबल। As soon Star as I से do that, I will get this result in a result window. हाँ जी बोलो। स्टार से तो बाय डिफॉल्ट वो पूरा ही टेबल ले लेगा. करेक्ट, स्टार से बाय डिफॉल्ट वो पूरा का पूरा टेबल ले लेगा, सारा का सारा डेटा ले लेगा। नाउ क्वेश्चन कम्स, जब अपने पास स्टार का ऑप्शन है, व्हाई डू वी हैव टू चूज पर्टिकुलर कॉलम्स? व्हाई कांट वी चूज ऑल द कॉलम्स? उसका बहुत सिंपल सा आंसर है। इमेजिन अ टेबल विद 2 मिलियन रोज ऑफ डेटा, ठीक है, और अपने को जो काम की चीज चाहिए वो सिर्फ उसके पोर्शन में है, मतलब उसके 2 या 3 कॉलम्स में ही है। तो व्हाई टू एक्सट्रैक्ट सच अ ह्यूज डेटा? जितना बड़ा आप डेटा एक्सट्रैक्ट करोगे उतना ज्यादा साइज भी उसका जाएगा, आपकी क्वेरी भी उतनी हैवी होगी, आपको टाइम भी उतना ज्यादा लगेगा उस पूरे डेटा पे एनालाइज करने के लिए, राइट? Right. मेक सेंस? Yes. परफेक्ट। अब डेटा मैनिपुलेशन में we have another command which is insert into and values. Now what do you think insert will do? It will insert a table. कोई It will insert a data into a table. data into it, right. ठीक है, इसका कमांड क्या है? insert into then values. Table. तो लेट्स सपोज मेरे को यहाँ पे एक नया रो ऐड करना है, तो व्हाट आई विल डू, insert into, किसमें इंसर्ट करना है मुझे? sales. I will write the table name sales, see command and object name, correct? Right. Okay. अब आपको सारे के सारे अगर पूरे के पूरे कॉलम्स में इंसर्ट करना है तो सिंपल यहाँ पे उसके बाद नीचे लिखो वैल्यूज और ब्रैकेट में उसकी वैल्यूज डाल दो। सबसे पहला कॉलम कौन सा है? परचेज नंबर, तो Purchase 21। number. सेकंड कॉलम कौन सा है? डेट, Date तो of डेट क्या purchase. डालोगे? आज की डेट क्या है? आज की April. 1 अप्रैल. चलो आज की हम डेट डालते हैं 1 अप्रैल 2024, कॉमा, नेक्स्ट कॉलम कौन सा है? कस्टमर आईडी 4, कॉमा। अब मैं यहाँ पे अगर ABC लिख देता हूँ और कॉमा D_1, तो डेटा चला जाएगा? नहीं. डेटा चला जाएगा क्योंकि ये दोनों के दोनों स्ट्रिंग है, String है. बट ये जाएगा कैसे? डेटा गलत चला जाएगा। हाँ. यहाँ पे 21 चला जाएगा, यहाँ पे जाएगा 1 अप्रैल 2024, यहाँ पे कस्टमर आईडी तो हमने 4 से डाली, यहाँ ABC चला जाएगा और यहाँ D_1 चला जाएगा। SQL कोई एरर तो नहीं देगा क्योंकि दोनों के दोनों स्ट्रिंग है, तो वो चला जाएगा, करेक्ट? लेकिन हाँ, अगर मैं इसमें उल्टा उल्टा पुल्टा कर देता हूँ तो SQL एरर दे देगा, क्योंकि भाई तो डेट में सिर्फ नंबर कैसे डाल रहा है? डेट में डेट ही डालना है। कूल, चलो हम इसको सीधा ही करते हैं, D1 एंड ABC, ठीक है? Okay. अब नेक्स्ट सपोज लेट्स सपोज मुझे सिर्फ परचेज नंबर डालना है, डेट ऑफ परचेज डालना है और आइटम कोड डालना है, मुझे और कुछ नहीं डालना, मुझे कस्टमर आईडी नहीं डालना, ना मुझे कंपनी नेम डालना है। तब मैं क्या करूंगा? एक बार फिर से रिपीट करेंगे. सी, अभी हमने सारे के सारे कॉलम्स में डेटा डाल दिया, करेक्ट? Right. हाँ. बट इट्स अ पॉसिबिलिटी कि नेक्स्ट टाइम व्हेन आई एम एंटरिंग अ डेटा, मेरे को सारे कॉलम्स में डेटा नहीं डालना, मेरे को सिर्फ परचेज नंबर डालना है, डेट डालना है और आइटम कोड डालना है, मेरे को कस्टमर आईडी नहीं डालना।
So we have to select those columns. So insert into sales, तब हम ब्रैकेट में वैल्यू से पहले यहाँ पे कॉलम के नेम्स डालेंगे. अब मैं लेट सपोज पहले डाल रहा हूँ डेट अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर परचेज कॉमा परचेज अंडरस्कोर नंबर. मैं इसका ऑर्डर जो मर्जी चाहूँ वो रख सकता हूँ. और उसके बाद आइटम अंडरस्कोर कोड. ठीक है. उसके बाद मैं नीचे डालूंगा वैल्यूज. अब वैल्यूज के ब्रैकेट में सबसे पहली वैल्यू कौन सी जाएगी? जो मैंने ऊपर कॉलम का ऑर्डर लिखा है. डेट ऑफ परचेज. डेट ऑफ परचेज क्या है मेरी? लेट्स सपोज 2 अप्रैल 2024 comma next purchase number is my 22nd. My item code is C_1. Now as soon as I hit enter, मेरा नंबर परचेज नंबर इज एट सेकंड नंबर मेरा है यहाँ पे 22. फर्स्ट इज डेट ऑफ परचेज, तो डेट ऑफ परचेज के अंदर वो वैल्यू डाल देगा 2 अप्रैल 2024 और यहाँ पे वो मेरे को डाल देगा C_1. बाकी दोनों की दोनों फील्ड्स एम्प्टी रह जाएंगी. फेयर इनफ? मतलब फिर से हमने सर? इसमें इंसर्ट वैल्यू जो हमको चाहिए था कॉलम हमने इंसर्ट वो टेबल में करा है. करेक्ट. फिर हमने Insert उसी के into नीचे sales values- हाँ, और ऊपर हमने कॉलम नेम्स डाल दिए और नीचे वैल्यूज डाल दिए. अगर मेरे को सारे के सारे टेबल में करना है तो मेरे को कॉलम नेम्स डालने की जरूरत नहीं है. आप लिख सकते हो इसके आगे सारे के सारे कॉलम नेम्स. आपको जो भी कॉलम नेम्स में वैल्यू डालनी है, यू कैन राइट ऑल द कॉलम नेम्स, बट इट्स अ शॉर्टकट. इफ यू आर इंसर्टिंग डेटा इन ऑल द कॉलम्स, देन यू डोंट हैव टू राइट द कॉलम नेम. ओके? Right. But if you want to insert in specific columns, then you have to specify the column name. सर Make sense? हाँ जी. सर एक तो सर ये एसक्यूएल जो है ये केस सेंसिटिव होगा ना सर? नहीं, SQL केस सेंसिटिव नहीं है. तो अब जैसे That is कॉलम the best नेम में part. सर ओके सर. और सेकंड सर जैसे हमें जैसे सिलेक्टिव डेटा ही डालना है तो कॉलम नेम देने की जगह हम वैल्यूज में ऐसे ब्लैंक नहीं छोड़ सकते सर? कोमा ब्लैंक नहीं कोमा नहीं ऐसे करके नहीं ऑर्डर में. नहीं नहीं, ब्लैंक नहीं छोड़ सकते आप. इतने शाने नहीं ओके बन सर. सकते SQL के साथ. ठीक है सर. उसका भी रीजन है, वो आगे जाके आपको पता चलेगा. ठीक है. नाउ आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड इन दिस PowerPoint जो भी मैंने आपको एक्सेल में एक्सप्लेन किया है. इंसर्ट इनटू सेल्स, परचेज नंबर, डेट ऑफ परचेज, वैल्यूज 1 and 11th of October 2017. What it will do? It will insert purchase number as 1 and 11th October as 2017. अगर मैं सिंपल ये लिखता हूँ इंसर्ट इनटू सेल्स वैल्यूज, तब क्या होगा? तभी यही होगा. करेक्ट? yes. It is one is the same thing because I am writing all the column names in here. तो मैं इतना लंबा क्वेरी लिखने की बजाय if I just type insert into sales values, that means I am just saving my time of entering the column names of my sales table. Correct? राइट. ये जो आपने ये डेट लिया, ये आपको ये हमको इन्वर्टेड कॉमास में रखना है. वो हम सीखेंगे आगे. डेटा टाइप जब हम लर्न करेंगे ना तब सीखेंगे. ठीक है. All right. Now next is update statement. Now आपको क्या लगता है अपडेट क्या करेगा? वो रीनेम जैसे ही लग रहा है, मतलब कुछ उसमें अपडेट कुछ करना हो. जो हमने ऑलरेडी डेटा एंटर कर दिया हुआ है हाँ. उसको अपडेट करने के लिए वी विल यूज अपडेट. तो अपडेट का सिंटेक्स क्या है? सेम DML का पढ़ो. व्हाट इज माय कमांड नेम? अपडेट. व्हाट अपडेट इज द ऑब्जेक्ट नेम? सेल्स. सेल्स. ठीक है. लेट्स सपोज मेरे को इसका डेट चेंज करना है 1 अप्रैल. ये मुझसे गलती से पड़ गया था. तब मैं क्या करूंगा? सेट और डेट अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर परचेज इज इक्वल टू 1 अप्रैल 2024. ठीक है. नाउ इफ आई रन दिस कमांड, व्हाट विल हैपन? डेट ऑफ परचेज के सारे कॉलम 1 अप्रैल में हो जाएंगे. बट मेरे को कौन सा रो चेंज करना है? 24th रो. 24th रो का परचेज नंबर क्या है? 22. तो मैं यहाँ पे डालूंगा वेयर परचेज अंडरस्कोर नंबर इज इक्वल टू 22. अगर मैंने इसमें वेयर स्टेटमेंट नहीं डाला तो वो पूरे के पूरे कॉलम को 1 अप्रैल 2024 कर देगा. ओके? मेक सेंस? यस. All right. Now as soon as I run this command, ये डेट 1 अप्रैल में चेंज हो जाएगी. So far with me? All right. Now next is delete statement.
It functions similarly to the truncate statement, but there is a difference between truncate and delete. What truncate will do, if you remember, टेबल truncate will all the delete data all होता the records. रिकॉर्ड्स But मेरे को let's suppose सिर्फ 22nd entry delete करनी है. Then I will write delete. What is the table name? What is the table name? Sales. परचेज From sales, where purchase underscore number is equal to 22. Now what it will do, it will only delete this record. Now if I do not use where, तो delete पूरा का पूरा table ही delete कर देगा. It will work exactly like truncate. Make sense? यस So delete from sales will delete all the records, or truncate table says sales is one is the same thing. But if I have to delete only one row, then delete from sales and then where condition. Okay? So these are your data manipulation languages. 99% of the time आप सिर्फ और सिर्फ select में काम करोगे. आप insert, update, delete पे भी काम नहीं करोगे. और select इतना vast है कि मैं आपको बता नहीं सकता. Select Vast. बहुत vast है. But again, data manipulation languages में आप क्या क्या कर सकते हो? You can select the data, you can insert, you can update, and you can delete. Will you remember this? यस इससे रिलेटेड आप असाइनमेंट्स देंगे क्या? अभी स्टार्टिंग में नहीं, अभी तो थ्योरी पार्ट चल रही है. जब प्रैक्टिकल पे जाएंगे तब मैं दूंगा आपको असाइनमेंट्स. ओके ओके ठीक है. नेक्स्ट इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज. नाउ व्हाट इज डेटा कंट्रोल? डेटा कंट्रोल में दो कमांड्स हैं, ग्रांट और रिवोक. जस्ट रिमेंबर दिस. अब व्हाई ग्रांट एंड रिवोक इज इंपॉर्टेंट? सी, जब तक तो कुछ लोग हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपके पास लेट्स सपोज 5 लोग हैं, पांचों के पास कंप्लीट एडमिन एक्सेस है डेटाबेस का. ठीक है. बट जैसे जैसे यूजर्स बढ़ेंगे, वी कैन नॉट गिव एवरीवन सेम एक्सेस. क्यों? किसी ने गलती से डिलीट फ्रॉम सेल्स लिख दिया विदाउट राइटिंग वेयर, आपका पूरा का पूरा डेटा डिलीट. एसक्यूएल एक बार पूछेगा भी नहीं, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट? जैसे मैं सेल्स को डिलीट करता हूं एक्सेल में, एक्सेल फिर भी पूछ लेता है. करेक्ट? यस एसक्यूएल नहीं पूछेगा. आपने लिख दिया ड्रॉप डेटाबेस सेल्स, वो उड़ा देगा. आपका डेटा गया, इट कांट बी रिट्रीव्ड. डू यू थिंक इट इज सेफ? नो इट इज नॉट सेफ, राइट? तो एडमिन सिर्फ 2 या 3 ही होते हैं आपके एसक्यूएल डेटाबेसेस के. वो आपको एक्सेस देते हैं अपने सारे यूजर्स को, और उनको एक्सेस देने की कमांड क्या है? ग्रांट. कैसे? ग्रांट टाइप ऑफ परमिशन. टाइप ऑफ परमिशन मींस ओनली सेलेक्ट या ओनली क्रिएट. हम इसमें कमांड्स डाल सकते हैं कि वो कौन कौन से कमांड्स यूज कर सकते हैं. तो ग्रांट सेलेक्ट ऑन डेटाबेस नेम डॉट टेबल नेम टू यूजर नेम एट लोकल होस्ट. मतलब उसका यूजर नेम डाल देंगे हम. और जैसे ही ये कमांड हम एंटर करेंगे, तो एसक्यूएल, लेट्स सपोज मैं श्वेता को ये कमांड डाल रहा हूं. ठीक है. मैंने श्वेता को कमांड डाली ग्रांट सेलेक्ट ऑन Amazon सेल्स डॉट सेल्स टू श्वेता एट लोकल होस्ट, क्योंकि मेरे सर्वर का नाम भी लोकल होस्ट ही है. ठीक है. अब श्वेता सिर्फ और सिर्फ सेल्स टेबल पे सेलेक्ट की क्वेरी लगा सकती है. श्वेता को प्रोडक्ट टेबल, कस्टमर्स टेबल, वन Amazon टेबल पे वो कुछ नहीं कर सकती. इस पे सेलेक्ट स्टेटमेंट भी लगाएगी, आ जाएगा यूजर यू आर नॉट ऑथराइज्ड. यू हैव टू गो टू द डेटाबेस गाय कि मेरे को इसका एक्सेस दे दो, रीड ओनली एक्सेस दे दो, so that I can work on it. क्योंकि select सिर्फ और सिर्फ ये डेटा उठाएगा. It will not change anything in this table. So this is what grant will do. Similarly, हाँ बोलो. ये ग्रांट एंड रिवोक पे एसेंचर में इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा गया था. अब मुझे एग्जैक्ट Okay. क्वेश्चन नहीं पता, जस्ट एक ग्रांट एंड रिवोक पे था वो पर. Okay. So now you know what is grant यस यस and why grant is important. यस Perfect. Or next is big companies and corporations don't use this type of server and their database lay on external more powerful servers. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए ग्रांट और रिवोक. नाउ एज सून एज यू रिजाइन, आपके पास उनके सर्वर आईडीज हैं, आपके पास उनका यूजर आईडी पासवर्ड है, यू कैन एक्चुअली गो आउट एंड फेच देयर डेटा. करेक्ट? जिस दिन आपका लास्ट डे होता है, व्हाट दे विल डू? सिंपली रिवोक इट. हाउ टू रिवोक? अगेन सिंपल, रिवोक टाइप ऑफ परमिशन ऑन डेटाबेस नेम डॉट टेबल नेम फ्रॉम यूजर नेम एट लोकल होस्ट. ये उनको मल्टीपल टेबल्स के अगर आपको एक्सेस देने हैं, so that is how they will do. They will write multiple grant statements and multiple revoke statements once you leave the data, once you leave the organization. Fair enough? यस Grant revoke समझ में आ गया? हाँ यार आज इसको मैं ठीक कर देता हूँ. मैं जब से पढ़ाता हूँ तब से सोच रहा हूँ ठीक करने का. Okay. Next is transaction control language, TCL. TCL में भी दो कमांड्स होते हैं. चलो इसको भी ठीक कर देते हैं. Now what is TCL? इसको बाद में करेंगे. Not every change you make to a database is saved automatically.
The commit statement related to insert, delete, and update will save the changes you have made, will let other users have access to the modified version of the database. For example, Excel में समझाता हूं पहले मैं आपको. अगर ये मेरी Excel वर्कबुक आप लोगों के साथ शेयर्ड है, ठीक है, मैंने इसमें 20 सेकेंड यहाँ पे लिखा और डेट चेंज कर दिया, 4 डाल दे, D1 डाल दे, ABC डाल दे, सब कुछ कर दिया. ये मेरे सिस्टम पे ये खुली हुई है इसलिए मुझे दिख रहा है. आपके सिस्टम पे चेंजेस दिखेंगे? नहीं दिखेंगे. ये कब दिखेंगे? जब मैं कंट्रोल S कर दूंगा. कंट्रोल S मतलब अब ये सेव हो गया है. अब जब आप खोलोगे अब आपको दिखेगा. करेक्ट? राइट. तो ये जो मैंने एक्सेल में कंट्रोल S करा है, एसक्यूएल में हम इसको क्या बोलते हैं? कमिट. चलो अब इसको समझते हैं. डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, लेट्स सपोज आई वांट टू चेंज the last name of this customer, Catherine Winfield, to Catherine Johnson. Can you give me the query first of all for that? What will be the query to change the last name of Winfield to Johnson? अपडेट. Correct. मेरे को पूरा एक बार स्टेटमेंट बताओ. अपडेट. अपडेट ये कस्टमर्स. Correct. अपडेट कस्टमर्स सेट. Correct. सेट क्या चेंज करना था आपको? Last name change करना है. ओके. सेट लास्ट नेम वेयर इज इक्वल टू Johnson. जॉनसन वेयर. Correct. वेयर लास्ट Customer ID is equal where to 4. customer ID is equal to 4, right? Sorry. Correct. Customer ID. This is the statement that you will write. Now, as soon as you do that, to database administrator or who is writing this query, he will be able to see Catherine Johnson. But other users को अभी भी Catherine Winfield ही दिखेगा. Correct? क्योंकि उसने save नहीं करा. To save that command, database administrator को क्या लिखना है? Commit. मतलब I am committing to this problem. Now, as soon as I have committed it, other users को भी Catherine Johnson ही दिखेगा. ठीक है? Next is rollback. Rollback means undo. It allows you to undo any changes you have made but don't want to be saved permanently. अब इसका एक छोटा सा ट्रिक है, अगर आप इसको समझ जाओ तो. Similarly, Excel में लेट्स सपोज मैंने एक नई एंट्री डाली 1 अप्रैल 2024 की 4th D1 और ABC, ठीक है, और मैंने यहाँ पे कंट्रोल S कर दिया, मतलब कमिट कर दिया. अब मैं अगर कंट्रोल Z करता हूँ या रोल बैक करता हूँ तो ये 20 सेकेंड एंट्री नहीं डिलीट होगी. मेरे को इसको रिमूव करने के लिए डिलीट ही लिखना पड़ेगा. ठीक है? या लेट्स सपोज मैं इसको कस्टमर आईडी 5 कर देता हूं और उसके बाद मैंने कंट्रोल एस कर दिया या कमिट कर दिया. अब मैं अगर रोल बैक करता हूं तो ये 5-4 में कन्वर्ट नहीं होगा. मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर से अपडेट स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी. अपडेट सेल्स सेट कस्टमर अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू 4 वेयर परचेज अंडरस्कोर नंबर इज 21. तब जाके ये 4 होगा. अब अगर मैंने कमिट नहीं किया और मैंने रोल बैक कर दिया तो ये अपने आप 5 हो जाएगा. मतलब एक बार आपने कमिट कर दिया फिर रोल बैक काम नहीं करेगा, वो अंडू का काम करता है. अगर आपने कमिट नहीं करा तो रोल बैक काम करेगा. समझ आए? हाँ ये ओके. एक बार आप ये एसक्यूएल शीट पे ही बाद में बता देंगे तो हम करेंगे. हाँ, ये एसक्यूएल में तो हम सीखेंगे ही डिटेल में जब हम अच्छा. एसक्यूएल पे काम करेंगे प्रैक्टिकली. ठीक जब है? हमने कमिट ही नहीं करा है तो रोल बैक तो मतलब दूसरे यूजर्स को तो दिखेगा भी नहीं वो. हाँ, दूसरे यूजर्स को दिखेगा भी नहीं बट आपको तो दिखेगा ना. तो उसको आप रोल बैक कर दोगे तो वो आपके लिए भी सेम हो जाएगा. बट एक बार आपने कमिट कर दिया और सबको भी दिख गया तब आप रोल बैक नहीं कर सकते. तब आपको दोबारा से अपडेट स्टेटमेंट डाल के कमिट करना पड़ेगा. ओके. तो डेटाबेस एडमिन वाले जो होते हैं ना वो जनरली पहले सारे के सारे रिकॉर्ड्स डाल देते हैं, उसके बाद एंड में कमिट करते हैं चेक करने के लिए ताकि आपको बार बार चेंजेस ना दिखें डेटा में. ठीक है? It allows you to take a step back. The last changes made will not count. Reverts to the last non-committed state. वहां तक पहुंच जाएगा जहां तक आपने कमिट नहीं करा था. जहां कमिट कर दिया उसके बाद वो चेंज नहीं कर सकता. फिर आपको दोबारा से स्टेटमेंट लिखनी है. सो DDL क्या करता है? क्रिएशन ऑफ डेटा. DML डेटा मैनिपुलेशन. DCL असाइनमेंट एंड रिमूवल. TCL is saving and restoring changes to a database. Simple? Yes. Perfect. Now next we will learn about some basic database terminologies. कि कौन-कौन से टाइप ऑफ टर्मिनोलॉजीज होती हैं डेटाबेस की. दैट वी विल स्टार्ट टुमारो. बट सो फार एसक्यूएल की थ्योरी में यही है कि 4 मेजर लैंग्वेजेस होते हैं: DDL, DML, DSL एंड TCL. ओके. ठीक है? अब इसका ये आप पीपीटी कहाँ पर लोकेटेड है एक बार बता देंगे क्या? ये डेटा सेट्स में ही होगी यार. डेटा आप उसमें डेटा सेट्स में जाओगे जो अपना वो है ना रोड मैप वाला, उसमें आपको दिख जाएगा. अच्छा. ओके. नहीं मिलता तो मुझे बता देना, मैं मेल कर दूंगा. मैं भी देख रही हूँ. डेटा सेट्स में जाओ, उसमें एसक्यूएल है. पता नहीं एक सेकंड में डेटा सेट पे मैंने क्लिक करा यार है दिस आइटम माइट नॉट एग्जिस्ट और इज नो लॉन्गर अवेलेबल.
है सर, मेरे तो खुल गया। है? खुल गया ना? लिंक भेज देना श्वेता को। आप लोग टीम्स में आपस में भी बात कर सकते हो, टीम्स डाउनलोड करके उसमें डाल दो। एक बार लिंक भेज देना प्रशांत। प्रशांत एक बार लिंक भेज देना यार श्वेता को, ठीक है? हाँ ठीक है सर। चलो ठीक है गाइस, कल विल कंटिन्यू विद आवर एसक्यूएल। परफेक्ट। तब तक इसकी रिकॉर्डिंग दोबारा देखना, क्योंकि कल मैं आके आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। 2 कमांड्स फ्रॉम एवरी लैंग्वेज। ऑल राइट, गुड नाइट, ओके, गुड नाइट। Right. Thank you. बाय बाय। थैंक यू, गुड नाइट।